بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق کی 7 بیٹیاں تھیں۔ 20 سال مزدوری کر کے صرف اتنے پیسے جمع ہوئے جن سے وہ صرف ایک بیٹی کی ہی شادی کر سکتا تھا۔ ایک دن فقیر آواز لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر 10 دو، اللہ 70 دے گا۔ تو بیوی نے بیٹی کا سارا جہیز فقیر کو دے دیا تاکہ 7 گنا ملے گا تو 7 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کا وقت آیا تو رفیق نے بیوی سے پیسے مانگے تو بیوی کی بات سن کر اس نے غصے میں آ کر بیوی کی ہڈیاں توڑ دیں اور بے عزتی کے خوف سے گھر سے بھاگ گیا۔ لیکن جب بارات آئی تو ماں بیٹی کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں پسینے سے شرابور تھا۔ ایک نظر اس نے سورج کی بڑھتی تپش کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے پرانے پوشیدہ لباس کی جانب دیکھا۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا، ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ چکے تھے، لیکن دوپہر کے کھانے میں ابھی بھی وقت تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمر پر اٹھائی سیمنٹ کی بوری اس نے کچے مکان کے اندر پھینکی اور سامنے رکھ کر کولر کے پاس آ گیا۔ اسٹیل کے گلاس سے جب پینے کے لیے پانی بھرا تو کولر کا پانی بھی گرم تھا، بس بامشکل چند گھونٹ ہی وہ پی سکا تھا۔ قمیض کی آستین سے اپنا پسینہ پونچھا، ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے اسے بیٹھے کہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، او فیکے جلدی کر، یہ ٹرک تیرے باپ کا نہیں ہے جو یہاں کھڑا رہے گا، جلدی سے ساری بوریاں نیچے اتار، پھر دوسرا ٹرک بھی تو آنے والا ہے، ریت بجری کا آج ہی سارا کام نپٹانا ہے۔ ابھی تو پہلے ہی سانس پھولا ہوا تھا، وہی اعتدال پر نہیں آیا تھا، پھر عمر بھی تو 50 کے اوپر کی ہو چکی تھی، اب اس سے تیزی سے کام نہیں ہوتا تھا جس طرح سے وہ جوانی میں کرتا آ رہا تھا، مگر مزدور کی قسمت میں کہاں بوجھ کم ہوتا ہے۔ رفیق نے گہری سانس خارج کی اور باہر نکل گیا۔ جب سے جون کا مہینہ چڑھا تھا، گرمی کی شدت عروج پر تھی، بار بار رفیق کا دل ڈوبنے لگتا تھا، جی چاہتا تھا کہ یک ٹھنڈا پانی اسے پینے کو مل جائے یا یہ سورج ہی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب تو ننگے پاؤں زمین پر چلنا بھی محال لگ رہا تھا، تھکن سے ہر جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک بوری اپنے کمر پر لاد کر کام میں مصروف تھا۔ رفیق کے مزدور تھا، ننگے پاؤں سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر مستریوں کے پاس رکھتا تھا اور بعض دفعہ گھر بنانے میں بھی مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ صبح فجر کے 5 سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی اور مغرب کی لالی جب اندھیرے میں بدل جاتی تبھی وہ گھر لوٹتا تھا۔ جب گھر آتا تو 7 بیٹیاں باپ کی خدمت میں جھک جاتی تھیں۔ بیوی یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ یہی حال رفیق کا بھی تھا، سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے اٹھاتے وقت سے پہلے ہی کمر جھک گئی تھی، اور پھر 7 بیٹیوں کا سوچ کر تو اس کی کمر مزید جھک جاتی تھی۔ بیٹے کی خواہش میں 7 بیٹیوں کی پیدائش نے اسے کملا کر کے رکھ دیا تھا۔ سب کی سب بیٹیاں خوبصورت، سلیقہ سوار اور خدمت گزار تھیں، لیکن جہیز کے بنا کوئی بھی بیانے کو تیار نہ تھا۔ یہ وہ بھی جانتا تھا کہ جب تک وہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دے گا، کوئی بھی اس کی بیٹی کو نہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ کھانے کے دسترخوان پر جب رفیق نے مرغی کا سالن دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے کہ مرغی مت پکایا کرو، اتنی مہنگی ہو چکی ہے، یہی پتلی دال بنا لیتی تو 2 وقت گزر جاتے، پیسے بچا کر رکھا کرو، مگر تم سمجھتی ہی نہیں، ساجدہ کی شادی کے وقت کام آئیں گے، لیکن تم کو کیا میری فکر، کہاں ہے تمہیں باپ کا مزاج برہم دے کر۔ بڑی بیٹی ساجدہ نے بات سنبھالی تھی، کہنے لگی ابا، ہم نے اماں سے ضد کی تھی، 2 ماہ گزر گئے، کچھ اچھا نہیں کھایا، اس لیے اماں نے پاؤں مرغی لا کر ہمیں بنا دی۔ بیٹیوں میں تو رفیق کی جان بچتی تھی، اس لیے کچھ نہ کہا۔ بیٹیوں نے پہلے باپ کو سیر اور کر کھانا کھانے دیا، اس کے بعد جو بچ گیا اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اگلے روز ہی جب قیامت ان پر ٹوٹی، ان کا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ جون کی سخت گرمی کا دن تھا، لگتا تھا سورج سر پر کھڑا ہے اور اس کی تپش سیدھا رفیق کے سر پر پڑ رہی تھی۔ چند سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے پر ہی وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن بہرحال
काम तो इसे करना ही था। अभी इसे बोरियां उठाते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि जब वो चकरा कर ज़मीन पर गिर गया। सारे ही मज़दूर रफ़ीक के पास पहुंच गए, इसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बीपी लो का कहा था, फिर उम्र का तकाजा भी था, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट के बाद इसे होश आ गया था। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया तो तंजिया मुस्कुरा कर कहने लगा, डॉक्टर साहब 7 बेटियां हैं मेरी और वो भी शादी के लायक। मैं अगर आराम करूंगा तो इन्हें खिलाएगा कौन और ब्याएगा कौन। अब तो शायद कब्र में ही लंबी नींद सोने को मिले। जब वो घर पहुंचा तो इसे वक़्त से पहले घर देख बड़ी बेटी साजिदा वक़्त वजह पूछने लगी। हाथ में पकड़ी दवाइयाँ देखकर इसका दिल सीने से खिंचा था। फौरन से बाप के पास पहुंची थी। अब्बा क्या हुआ है, तेरी रंगत क्यों पीली हो रही है? साजिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे कुछ नहीं चंदा, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था, मुझे ठंडा पानी तो पिला दे, रफ़ीक ने फूलते सांस से कहा। ठीक से लफ्ज़ भी अदा नहीं हो पा रहे थे। वो चारपाई पर ही बैठ गया। करीब ज़मीन पर बीवी जाए नमाज को बचाए नमाज पढ़ रही थी। समाज सलाम फेरते ही दूसरी बेटी को आवाज़ देकर कहने लगी, अरे फाखरा, चीनी नमक वाला पानी बना कर दे अपने अब्बा को, देख तो कैसे हाँफ रहे हैं। बीवी ने जाए नमाज तय की और एक तरफ रख कर रफ़ीक के पास बैठ गई। कहने लगी, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि 1-2 दिन का आराम कर लो, देखो तो कैसे रंगत फीकी पड़ गई है। आपकी बार रफ़ीक इसे गौर से देखकर फिर बोला, 7 बेटियों का बोझ है मेरे सर पर, अगर मैं घर पर बैठ गया तो फाकों की नौबत आ जाएगी। इतनी देर में फाखरात पानी का शरबत बनाकर ले आई थी। रफ़ीक ने शरबत पिया और वहीं चारपाई पर लेट गया। बेटी ने स्टैंड फैन भी लगा दिया था। इसकी बीवी ने कहा कि ये बेटियां अल्लाह ने दी हैं तो अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे ही खोलेगा। मेरा तो अपने रब पर बड़ा ही यकीन है। आप क्यों फिक्र करते हो जी, आराम से सो जाओ। रफ़ीक को भी आज तक अपनी बीवी की बात समझ नहीं आई थी। हर वक्त यही कहती थी कि अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह इनका नसीब भी अच्छा करेगा। रफ़ीक के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन फिक्रें थीं कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी चंद दिन पहले ही इसके मज़दूर तबके में से एक शख्स ने इसे इसकी बड़ी बेटी साजिदा के रिश्ते की बात की थी, लेकिन रफ़ीक ने अभी तक इनको जवाब नहीं दिया था। वो चाहता था कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, ये सोच के कि बेटी मज़दूर के घर से निकलकर मज़दूर के घर ही चली जाएगी। लेकिन बड़ी बेटी 24 साल से भी टप रही थी, इसलिए आंखें बंद किए वो बीवी से मशवरा लेने लगा। कहने लगा, जमाल हुसैन ने अपने बेटे कामों का रिश्ता साजिदा के लिए मांगा है। लड़का मेरा देखा भाला है, शरीफ है, लेकिन बात वही कि 2 वक्त की रोटी ही इज्जत से देगा। बीवी ने कहा कि बुला लो इनको, अब बच्ची को ब्याना भी तो है। रफ़ीक ने हामी भरते हुए इस बात में सर हिला दिया। चंद दिन के बाद ही जमाल हुसैन और इसकी बीवी साजिदा को देखने के लिए आ गए। साजिदा इन्हें पसंद आ गई थी। खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, घर के हर काम में भी तेज थी। बैठे बैठे ही रिश्ता तय हो चुका था। चंद माह बाद ही शादी का भी जमाल हुसैन ने कह दिया था। इस बात पर रफ़ीक ने अपनी बीवी की जानिब देखा। फिर जमाल हुसैन ने कहा कि देख भाई, मैं अपनी बच्ची को ढेर सारा जहेज तो नहीं दे सकता, हाँ 20 साल की जमा पूंजी पड़ी है, जो इसके नसीब का होगा वो सब दूंगा। जमाल हुसैन खुद मजदूर तबके से था, इसलिए कुछ नहीं बोला। इसकी मजदूरी को समझता था, लेकिन बीवी नखरेबाज थी। कहने लगी, जमाल हुसैन एक ही मेरा बेटा है, मैंने तो सारे चाव इसकी शादी पर पूरे करने हैं। बरादरी मेरी ज़्यादा लंबी चौड़ी तो है नहीं, लेकिन ज़ाहिर है बेटे की बारात 100 बंदों में तो लाऊंगी और खाने की ही इज्जत होती है। मियाँ, बस मेरे बरातियों को अच्छा पूछ लेना, बाकी तेरी बेटी है, जो तू देगा वो अपने कमरे और घर में सजा लेगी। सीधा सा मतलब था कि जो जहेज दोगे बेटी इस्तेमाल कर लेगी। रफ़ीक की 20 साल मेहनत में बस इतनी ही जमा पूंजी थी कि एक बेटी को इज्जत से ब्याह सकता था, इसलिए हामी भर ली। लेकिन बीवी
बड़ी खामोश हो गई थी। जैसे ही जमाल हुसैन और इसकी बीवी घर से गए तो रफ़ीक की बीवी कहने लगी, मुझे तो पता नहीं क्यों ये लोग लालची से लगते हैं। इनका बेटा कौन सा लैंडलॉर्ड है, मज़दूर ही तो है। क्या था जो कह देते कि बिना जहेज़ के ही बेटी मारे वाले कर दो। बीवी की बात सुनकर रफ़ीक हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, गरीब हो या अमीर, बिना जहेज़ के बेटी घर से रुखसत नहीं होती। खैर, एक को तो ब्याने की तैयारी कर, बाकी की देखी जाएगी। रफ़ीक को ये था कि चलो कि बेटी तो अपने घर की होगी, लेकिन बीवी बड़ी मुतफक्कर सी लग रही थी। अभी ये बात कुछ पुरानी भी नहीं हुई थी कि फ़ाखरा के लिए भी मोहल्ले के मोची के बेटे का रिश्ता आ गया। कर वो भी मुनासिब सा था, लेकिन लड़के का काम अच्छा था। लड़के की माँ खुद आई थी, अब बताने लगी कि मेरा बेटा रोज़ के 1500 कमाता है। बेशक बेटा मोची है, लेकिन कमाई अच्छी है। लेकिन जब रफ़ीक की बीवी ने कहा कि वो 2 बच्चों को जहेज़ में इतना नहीं दे सकते, तो खतून का मुंह बन गया था। कहने लगी, देख लो, शादी तो एक बार ही होती है, माँओं के भी तो कुछ अरमान होते हैं। बहरहाल तेरी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि तेरी बच्ची हमारे घर में खुश रहेगी। हम इसे बहुत खुश रखेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना सुनना था कि रफ़ीक की बीवी सोच में पड़ गई कि ये रिश्ता अगर हाथ से निकल जाता तो शायद वो सारी ज़िंदगी पछताती रहती, मगर यहाँ भी तो जहेज़ ही देना था। आखिर वो क्या करती। इस शाम जब रफ़ीक घर आया तो बीवी की को पहली बार मुतफिक्र सा देख कर कहने लगा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। बीवी रफ़ीक की बीवी बात को टाल गई और बोली कि कुछ नहीं, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि तुमने जो 20 साल में कमाया वो तो बामुश्किल एक ही बेटी बहने जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ा थोड़ा जहेज़ दोनों बेटियों को दे दें। ये तो माँ बाप की तरफ से एक तोहफ़ा ही बेटियों के लिए होता है, और हमारी बेटियां भी तो माशाल्लाह बड़ी फर्माबरदार औलाद हैं। हम इनको जो भी देंगे खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। रफ़ीक ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को देखकर कहने लगा कि अगर बात बेटियों की होती तो हमारी बेटियां हमसे एक आना भी ना लेकर जाती, मगर यहाँ बेटियों को नहीं बल्कि ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। तभी लगे हाथ रफ़ीक की बीवी ने मोची के बेटे के आने वाला रिश्ते के भी इसे बताया, मगर रफ़ीक ने सोचो विचार के बाद मना कर दिया। कहने लगा, इनसे कहो कुछ अर्सा इंतज़ार करें, मैं एक साथ 2 बेटियों का जहेज़ अदा नहीं कर सकता। मगर फिर रफ़ीक की बीवी कहने लगी कि ऐसे अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते, तुम कहीं से कुछ कर्ज ले लो, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। रफ़ीक सोच में पड़ चुका था। इसकी तबीयत दिन ब दिन मज़ीद गिरती चली जा रही थी, मगर इसके बावजूद बेटियों की खातिर वो लगातार मेहनत करने लगा। वो बूढ़ा हो चुका था, मगर फिर ट्रक से बोरियां उतारने के बाद वो घर बनाने में भी काम करने लगा। वो जानता था कि अगर वो अगले 10 साल तक भी पैसे इकट्ठे करता रहा तो भी वो दूसरी बेटी का जहेज़ नहीं बना पाएगा। इसकी बीवी ने दूसरे घर में भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूँ साजिदा और फ़ाखरा दोनों के रिश्ते के लिए हाँ हो चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की ही बात थी। इसलिए दोनों ने सोचा कि दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन कर देते हैं। इस तरह मेहमानों का खर्चा भी एक हो जाएगा, कुछ बचत भी हो जाएगी। रफ़ीक ने कहीं से कुछ उधार पकड़ा और लाकर बीवी के हाथ पर रखा। इसके अलावा इसके पास जितने भी 20 साल की जमा पूंजी थी वो भी लाकर बीवी के हाथ पर रखी और बोला, इन पैसों को संभाल कर रखना, इससे मैं थोड़ा बहुत जहेज़ दोनों बेटियों को लेकर दे दूंगा। रफ़ीक की बीवी शौहर की बात मान गई। वो बड़ी सोमो सलात की पाबंद खतून थी। एक रोज़ वो मगरिब की नमाज अदा कर रही थी कि जब गली से एक फ़कीर की सदा आई। लोगों से पैसे मांग रहा था। कुछ ही देर बाद वो दुआ देते हुए कहने लगा, खुदा तुम लोगों का भला करे, तुम मुझे एक दोगे, खुदा तुम्हें 7 गुना करके देगा, तुम्हारे रिज़्क में बरकत डालेगा। मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, खुदा तुम्हें लोगों को एक नेकी के बदले 70 गुना देगा। रफ़ीक की बीवी ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गई।
खुदा की ज़ात पर तो इसे बिल्कुल भरोसा था और वो ये भी जानती थी कि खुदा हर नेकी का बदला दोगुना करके लौटाता है। वो फ़ौरन खुश हो गई। इसने कुछ सोचा और फिर शौहर की दी हुई तमाम तर रकम लाकर इस फ़कीर के पास चली गई। फ़कीर से कहने लगी कि ये लो बाबा, ये मेरे शौहर की 20 साल की मेहनत है। मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे इतना दे कि मैं अपनी 7 बेटियों का जहेज़ पूरा करके इनको अच्छे घरों में ब्याह सकूँ, इनके अच्छे नसीब हों। मैंने इसमें मेरी कोई लालच नहीं, बस खुदा से खैर मांगती हूँ। फ़कीर ने जब ये देखा तो एक नज़र रफ़ीक की बीवी पर डाली और फिर आसमान की जानब हाथ बुलंद करके कहने लगा, खुदा तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने देगा, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। वो इतनी दुआएं देकर इस खतून से पैसे लेकर चला गया, जबकि रफ़ीक की बीवी खुश हो गई थी कि अब खुदा इसे इसके अजर में 7 गुना ज़्यादा पैसे देगा, जिससे इसकी 7 बेटियों का घर जहेज से भर जाएगा। वो खुश थी। चंद ही रोज़ बाद दोनों बेटियों की शादी थी। तमाम तर खर्च तो इन्हीं पैसों से ही अदा होने थे। शादी से 2 दिन पहले रफ़ीक अपनी बीवी से कहने लगा कि सुनती हो बेगम, मुझे ज़रा ऊपर से कुछ पैसे तो निकाल दो। सोच रहा हूँ कि मेहमानों के लिए जो लवाजमात लाने हैं वो ले आऊँ। जब रफ़ीक की बीवी ने ये सुना तो सोच में पड़ गई। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। रफ़ीक कितनी बार बीवी से पैसे मांगता रहा मगर वो कुछ ना बोली। आखिरकार कहने लगी, वो पैसे तो अब आपको खुदा ही देगा। रफ़ीक हैरान था। कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रही हो, वो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे। रफ़ीक की बीवी हड़बड़ा कर कहने लगी कि वो पैसे तो मैंने एक फ़कीर को दे दिए हैं। वो कह रहा था कि तुम खुदा की राह में खर्च करोगी तो खुदा तुम्हें इसका दोगुना करके देगा। वो ये भी कह रहा था कि वो तुम्हारी एक नेकी के बदले 7 गुना बढ़ाकर सवाब देता है, इसलिए मैंने वो सारे पैसे इसे दे दिए ताकि बदले में खुदा मुझे 7 गुना बढ़कर बदला अदा करे, जिससे मेरी 7 बेटियों का जहेज बन सके और वो अपने घरों में खुश रह सकें। रफ़ीक ने जब ये सुना तो मारे सकते के ज़मीन पर गिर गया था। तो बेटियों ने आकर बाप को थामा। रफ़ीक कितनी देर तक सकते की हालत में बैठा रहा, अपनी बीवी को देखता रहा। इसका हाथ बेसाख्ता अपने सीने पर गया था। वो बौखलाए हुए अंदाज में कहने लगा कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिमाग तो सेट है। मेरी 20 साल की मेहनत, मेरी 20 साल की जमा पूंजी, जिसे कमाते कमाते मेरी कमर झुक गई, मेरी पैरों की एड़ियाँ घिस गईं, मैं बूढ़ा हो गया। तुमने वो मेरी सारी कमाई, मेरी बच्चियों का हक उठाकर एक फ़कीर को दे दिया। शौहर की हालत देखकर बीवी के भी रोंगटे खड़े हो हुए थे, मगर वो अपनी बात पर अटल रही कि खुदा हमें इसका अजर देगा। रफ़ीक उठा और वो जगह टटोलने लगा जहाँ इसने पैसे रखवाए थे, मगर वहाँ तो सिवाय कर्ज लाए पैसों के कुछ भी मौजूद ना था। रफ़ीक ने सारी ज़िंदगी बीवी को कभी डांटा ना था, कभी गुस्से से बात तक ना की थी, मगर आज जो कुछ इसने किया था, रफ़ीक जैसा मजबूत असाब का मर्द भी मारे गुस्से के सुर्ख अंगारा हो गया। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब बर्दाश्त ना कर सका तो बीवी की जानब बढ़ा और इसे मारने लगा। वो रो भी रहा था और बीवी को गुस्से से मार भी रहा था। वो कभी चिल्लाकर अपने बाल नोचने लगता तो कभी बीवी को मारने लगा। इसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। 7 बेटियां कभी माँ को बचाने लगती तो कभी बाप को दूर करती रही। रफ़ीक ने बीवी को इतना मारा कि बेचारी के बाजू की हड्डी टूट गई। वो रोती सिसकती रही और यही कहती रही कि तुम खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो, मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है, वो हमें इसका अजर ज़रूर देगा। आखिर 3 बेटियां माँ को अपने कमरे में ले गई तो बाकी की 4 बाप को संभालने लगी। इस पर सभी अफराज रो रहे थे। रफ़ीक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता जब मेरे हाथ में देने के लिए जहेज ही ना होगा। शादी को सिर्फ 1 दिन बाकी था। कल दोनों बच्चों की बारात आनी थी, मगर हाथ में पैसा ही ना था जो जहेज लाया जाता। आखिर इसने कर्ज लिए हुए पैसों से जाकर बेटियों के लिए अरूसी लिबास खरीदे
और कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोगों को पहनना नसीब होगा। वो बिल्कुल ही मायूस हो चुका था, जबकि इसकी बीवी जो बाजू पर पट्टी बांधे हुए बैठी थी बोली कि तुम खुदा की ज़ात से नाउम्मीद मत हो, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारा सर कभी झुकने नहीं देगा। रफ़ीक ने अपनी बीवी से दोबारा बात ना की थी। अगला दिन चढ़ा तो आज बेटियों की बारात आनी थी। रफ़ीक इस कदर बुज़दिल हो चुका था कि सुबह ही सुबह घर से चला गया। बेटियां रोकने लगीं तो कहने लगा कि मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा अगर यहाँ रुककर वो तमाशा देखा। इतना कह के वो घर से चला गया, जबकि बेटियां रोती हुई माँ से लिपट गईं। बच्चियां दुल्हन बनकर तैयार थीं। पहले फाखरा की बारात आई और फिर साजिदा के ससुराल वाले भी आन पहुँचे। खाना तो सिर्फ मेहमानों के लिए तैयार ही ना था। रफ़ीक की बीवी अलग बौखलाई हुई थी कि मेहमानों को क्या जवाब देती। वो कलाम पाक का विर्द दिल में कर रही थी कि खुदा की इसकी इज्जत रख ले। तभी दोनों के ससुराल वाले आए और बोले, बहन जी कुछ भी इंतज़ामात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम मेहमानों को घर से खाना खिला कर लाए हैं। इतना सुनना था कि रफ़ीक की बीवी हैरान हो रह गई। तभी इसका एक दामाद बोला, जो कि साजिदा का होने वाला शौहर था, कहने लगा कि आखिर ये हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। रफ़ीक की बीवी ने सुकून का सांस लिया था। दिल ही दिल में वो खुदा का ज़ात का शुक्र अदा करने लगी, मगर जहेज़ के नाम पर तो कुछ भी मौजूद ना था। निकाह का वक़्त हुआ तो मौलवी साहब ने पहले साजिदा और फिर फाखरा से इजाब कबूल करवाया। थोड़ी देर में मुबारकबाद की आवाज़ें पहुँचने लगी थीं। निकाह के बाद रफ़ीक के दामाद दोनों दमाग उठकर अपनी सास के पास आए और आकर कहने लगे कि खाला, हमें आपसे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, हम आप ही की तरह मतवसब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप फ़िक्र मत करें, आपकी बेटियां को हम अपने घरों में बहुत खुश रखेंगे। जो खुद खाएंगे वही इनको भी खिलाएंगे। आप जहेज़ देकर हमें शर्मिंदा मत करें। रफ़ीक की बीवी ने जब ये सुना तो वो कितनी ही देर सकते की हालत में खड़ी रही, फिर हड़बड़ाकर दोनों दिमाग के सर पर बुस्सा देकर दुआएं देने लगी। इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। बेशक इसकी नेकी रायगा नहीं गई थी। रफ़ीक के बारे में सभी मेहमान पूछ रहे थे। कुछ देर के बाद वो घर आ गया। वो तो समझ ही ना पा रहा था। वो समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, मगर जब घर आया तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। सभी मेहमान बड़े ही खुश थे। इनकी बड़ी बेटी और फाखरा दोनों ही अपने अपने शोहरों के साथ बैठी हुई थीं और वहाँ मौजूद लोग दुआएं दे रहे थे। रफ़ीक ने जब ये देखा तो दंग रह गया। बीवी से सवाल करने लगा तो रफ़ीक की बीवी ने इसे सब सच बता दिया। रफ़ीक हैरान था कि ऐन मौका पर इसके दिल में इतनी खैर कैसे आ गई, मगर इसकी बीवी फ़ौरन मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी खुदा हमारी नेकी का अजर ज़रूर देगा। ज़रूरी तो नहीं कि वो पैसे के बदले पैसे ही दे। हमने इसकी राह में पैसे खर्च किए और देखो कि किसने हमारे लिए कैसे असबाब तैयार किए हैं कि आज हमारी दोनों बेटियां बगैर जहेज़ के इज़्ज़त के साथ रुखसत हो रही हैं। ये सुनकर रफ़ीक को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। वो बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा कर गया और हंसी खुशी अपनी दोनों बेटियों को रुखसत कर गया। इसके बाद इसकी बाकी बेटियां भी बगैर जहेज़ के रुखसत हो गईं। रफ़ीक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वो जिस हाल में भी रखे, ज़रा सी बात पर खुदा की ज़ात से नाउम्मीद हो जाते हैं, जबकि अगर हम सच्चे दिल से मांगें तो वो हमें ज़रूर अता करता है।